Hello everyone, this is Sadhna and today I am going to discuss with you EMRS TGT Science Series number 3, which is related with nutrition in plants and nutrition in animals. Question number 17 is which is not a micronutrient. फ्रेंड्स यहाँ पर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है एंड द ऑप्शंस आर ए बोरॉन, बी जिंक, सी magnesium, D molybdenum. First of all, we have to understand what is macronutrient and micronutrient. Friends, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को काफ़ी कम क्वांटिटी में होती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट macronutrients are those nutrients which are required in more quantity. Here some examples like boron. Boron is one of the example of micronutrients, so this option is wrong. B, zinc is also one of the example of micronutrient. C is one of the example of macronutrient, so option number C is correct, as well as molybdenum also one of the example of micronutrient. So correct option is here C, magnesium. Here the question number 18 is plants absorb nitrogen from the soil which is in the form of A, nitrogen oxide, B, nitric acid, and the C is nitrates, and D is free nitrogen gas, and the free nitrogen gas always in the form of N2. Here the correct option is C, nitrates. Next question is who is known as the father of white revolution? इनमें से किसे white revolution का father कहा जाता है? The answer is Dr. V. Kurian. Next question is which of the following are energy foods? Option A is water and roughage, B proteins and minerals, C vitamins and minerals, D carbohydrates and fats. फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो है आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. वहीं यदि हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स से हमें ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है, लेकिन इसका जो ब्रेक डाउन होता है काफ़ी स्लो होता है. इसलिए जब भी आपको इंस्टेंट एनर्जी लेना होता है तब आप ग्लूकोज लेते हैं, ना कि फैट. Question number 21 is in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? किस टाइप के न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करता है विदाउट किलिंग? एंड द ऑप्शंस आर ए इज ऑटोट्रॉफ, बी इंसेक्टिवर, सी पैरासाइट, डी होलोजोइक. फ्रेंड्स, as we know that all green plants, they belongs to the category of autotrophs. They prepare their food by using photosynthesis process, so option A is wrong. When we talk about insectivore, so insectivore are those organisms which derive their food by killing insect, so option number B is also wrong. When we talk about parasites, so parasite is the correct option here because they derive their nutrition from another organism without killing. So option number C is correct and D is होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक में क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली जैसे यदि हम बात करें अमीबा की, तो ये क्या करते हैं, जो भी उनका न्यूट्रिएंट रहता है उसको या तो सॉलिड के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में रहता है उसको इनगल्फ करते हैं और कम्प्लीटली क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग. हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पैरासाइट्स. Question number 21 is in amoeba food is digested in the.
अमीबा में फूड का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? ए फूड वैक्यूल्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सूडोपोडिया, डी क्लोरोप्लास्ट। फ्रेंड्स, अमीबा में क्लोरोप्लास्ट तो होता ही नहीं है। सूडोपोडिया की यदि हम बात करें तो सूडोपोडिया आर फॉल्स फीड, सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो रॉन्ग। Mitochondria is also not present here. Mitochondria is the powerhouse of the cell. And the correct option is A, food vacuoles. Question number 24 is, which region of the alimentary canal absorbs the digested food? Friends, alimentary canal क्या होता है? Alimentary canal is a muscular tube which extends from the mouth to the anus. ये एक muscular tube की तरह है जो हमारे माउथ से लगाकर एनस तक है। और यदि हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट्स होते हैं, लाइक माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में फूड का डाइजेशन होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक में जो है प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। Question number 25 is, the contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called. फूड पाइप में जो कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपांशन का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज़ ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी इज़ ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऑप्शन डी इज़ डाइजेशन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। इसे ही कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप में जो कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपांशन होता है जिसके थ्रू फूड का मूवमेंट होता है, उस प्रोसेस को ही कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 इज, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? हियर द ऑप्शंस आर ए लैक्टिक एसिड plus energy, B carbon dioxide, water and energy, C ethanol, carbon dioxide and energy, and D is pyruvate. And the correct option is here ethanol. जब प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो ग्लूकोज रहता है ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और फिर बाद में ये पायरुवेट जो रहता है ये इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Question number 27 is, which of the following chiefly digested in the stomach? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो स्टमक में डाइजेस्ट होता है? ऑप्शन ए इज़ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी इज़ प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इज़ लिपिड्स एंड ऑप्शन डी इज़ फैट्स। फ्रेंड्स, स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, और ये जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है ये पेप्सिन एंजाइम जो रहता है स्टमक के थ्रू सीक्रेट होता है, और यही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, और ये जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो ये एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 इज, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो लीवर से बाइल जूस को रिसीव करता है? And the options are stomach, B small intestine, C large intestine, and D is esophagus. And the correct option is B small intestine. Friends, small intestines receive bile from the liver, and bile is later stored within the gallbladder, which executes two different functions, making food alkaline and breaking down its fat content. फ्रेंड्स, जितना भी जो यदि हम बाइल जूस की बात करें तो ये बाइल जूस जो है वो लीवर से कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है,
और यदि आपसे पूछा जाता है कि बाइल का स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो बाइल का स्टोरेज है गाल ब्लैडर में किया जाता है। और यहाँ पर गाल ब्लैडर में जब ये स्टोर किया जाता है तो ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो फूड को अल्केलाइन करता है, यानी उसके बेसिक नेचर को मेंटेन करता है। साथ ही साथ यदि उसमें कोई फेट कंटेंट यदि प्रेजेंट रहता है तो उस फेट कंटेंट को भी वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। Question number 29 is oxygen liberated during photosynthesis comes from। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑप्शन ए इज़ वाटर, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इज़ क्लोरोफिल। Friends, chlorophyll is a pigment which help to initiate the process of photosynthesis। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो होता है मैग्नीशियम। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसी तरह से क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। सी इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रॉ मटीरियल, सो हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। Option D, glucose. Glucose is the main product of the process of photosynthesis. So glucose is also wrong answer. And the correct option is water. अब फ्रेंड्स होता क्या है, जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है ये स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन में। और इसी तरह से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से ही मिलती है। Question number 30 is when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of। जब हम टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर लिया है उसमें जब एयर ब्लो करते हैं माउथ से तो जो टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है वो थोड़ा सा मिल्की हो जाता है। तो उसके मिल्की होने का क्या रीज़न है, क्या किस चीज़ की प्रेजेंस के कारण लाइम वाटर मिल्की हो जाता है? एंड द हियर ऑप्शंस आर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी nitrogen, and D is water vapor. And friends, here the correct option is B कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस के कारण ही लाइम वाटर जो रहता है वो थोड़ा मिल्की हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फ्रेंड्स, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन कैंडिडेट्स को जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जितने भी जो टीचिंग जॉब से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स होते हैं जो टीजीटी साइंस के लिए या ईवीएस के लिए प्राइमरी लेवल पर प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पर काफ़ी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।